ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ لائبہ کہاں ہو تم؟ وہ غصے سے چلاتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں چیل کی طرح چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب غصے کے ساتھ ساتھ اس کی بے چینی بھی سوا نیزے پر تھی۔ نوری، کہاں مر گئے ہو سارے؟ میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے جو منظر دیکھا تھا وہ کسی بھی طور پر اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور اب اسی منظر کی ہی تصدیق کرنے کے لیے وہ افراتفری میں گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ 2 سے 3 بار اس نے جب نوری کا نام پکارا تو وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی۔ جی صاحب جی، معاف کر دیجیے گا، دراصل پیچھے حصے میں موجود تھی۔ بیگم صاحبہ نے پودے لگانے کے لیے بولا تھا، بس انہی کا کام کر رہی تھی۔ نوری کی بات سن کر وہ مزید طیش میں آ گیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اسے بیگم صاحبہ کہہ کر نہ پکارا کرو، اور تم کیوں اس کے کام کرتی ہو؟ تم اس کی نہیں بلکہ میری نوکرانی ہو۔ تمہیں کام کرنے کے لیے پیسے میں دیتا ہوں، وہ پیسے نہیں دیتی۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ نوری اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، صاحب جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ تمہیں دوبارہ کبھی اس کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ پہلے بھی میں تمہیں کئی بار معاف کر چکا ہوں، مگر تم ہر بار وہی کام کرتی ہو۔ میں نے کبھی بھی کسی کو مہلت نہیں دی، لیکن تمہیں میں 3 بار مہلت دے چکا ہوں۔ اب میں مزید تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کے بعد تم اس گھر میں کام نہیں کرو گی، تمہاری یہاں پر ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی اور پھر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اندر جا کر اس نے جب کسی کو بھی نہ پایا تو اس کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ اب کی بار اس نے رشیدہ خالہ کو پکارا اور ان سے چلاتے ہوئے پوچھا، لائبہ اس وقت کہاں پر ہے؟ خالہ رشیدہ اس کی پرانی ملازمہ تھی۔ وہ چھوٹا سا تھا جب وہ اس گھر میں کام کرتی تھی، وہ ان کی گود میں ہی بڑا ہوا تھا۔ جہانگیر بیٹا، پہلے تھوڑا سا دم لے لو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ انہوں نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک ضدی گھوڑا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے آرام نہیں کرنا اور نہ ہی میں نے کسی قسم کی کوئی بات سننی ہے۔ مجھے بتائیں کہ لائبہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ وہ دوبارہ سے اسی انداز میں چلایا۔ اس سے پہلے کہ رشیدہ خالہ کوئی جواب دیتی، اسے اپنے پیچھے لائبہ کی آواز سنائی دی، جی میں یہاں پر ہوں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو لمحے میں ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ ابھی ابھی گھر کے اندر داخل ہوئی ہے۔ بلا شبہ اس نے چادر تبدیل کر لی تھی اور اس وقت ایک ہلکا سا دوپٹہ لیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی پھولی ہوئی سانسیں، اس کی اڑی ہوئی رنگت اور اس کے پسینے سے تر چہرے کو دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جلدی میں یہاں پر پہنچی ہے۔ تم کہاں پر گئی تھی؟ کوئی بھی تمہید باندھے بغیر اس نے 2 ٹوک انداز میں اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بہانہ بناتی، جہانگیر نے اس کا منہ دبوچ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرایا، خبردار جو تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ تم کہاں پر تھی۔ جب میں نے تمہیں گھر کے فرد سے بات کرنے سے اور ان سے ملنے سے منع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کبھی بھی اپنے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھو گی اور نہ ہی کبھی لوٹ کر ان کے پاس جاؤ گی۔ تو کیا تمہیں میری ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اب کیا تمہیں مجھے کسی اور انداز میں سمجھانا پڑے گا؟ تم جیسی ڈھیٹ عورت اپنی ساری زندگی میں نے نہیں دیکھی۔ ارے کیا تمہیں اپنی بے عزتی کی ذرا پرواہ نہیں؟ ہر روز ہی میں تمہیں مارتا ہوں، تمہیں گالیاں دیتا ہوں، تمہیں برا بھلا کہتا ہوں، مگر مجال ہے جو کبھی تم پر میری بات کا اثر ہو جائے۔ ہر بار تم وہی غلطی کرتی ہو، ہر بار تم وہی بات دہراتی ہو، اور ہر بار
तुम वही काम करती हो जिस काम से तुम्हें रोका जाता है। आखिर तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, रुकैया बेगम वहां पर पहुंच गईं और अपने पोते को डांटते हुए कहने लगी, ये तुम अपनी बीवी से किस अंदाज में बात कर रहे हो? क्या मैंने इसके साथ तुम्हारा निकाह इस वजह से करवाया था कि तुम इस पर तशद्दुद करना शुरू कर दो? दादी अम्मा को वहां पर देखकर वो बौखला गया और फिर तेजी से पीछे हट गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी दादी अम्मी यहां पर मौजूद होंगी। उनसे इसने यही कहा हुआ था कि उसकी बीवी बहुत अच्छी है और इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर आज उसका ये झूठ भी पकड़ा गया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश की। उसके बाद वो दादी जान से मुखातिब हुआ और बोला, मैंने उसे मना किया था कि ये मेरी इजाज़त के बगैर इस हवेली से बाहर नहीं निकलेगी, मगर ये वहां पर अपने कज़न के साथ कैफ़े में बैठी गुल छर्रे उड़ा रही थी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, उसकी दादी ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, क्या तुमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है? मुझे अबरार, मैं तुमसे पूछ रही हूं, क्या ये सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है? उसकी बात काट कर दादी जान ने दोबारा से अपना सवाल पूछा। इस बार उसने नफी में सर हिला दिया। वो 2 कदम आगे बढ़ी और उसके सामने खड़े होते हुए कहने लगी, ये पिछले 2 घंटों से मेरे साथ लॉन में मौजूद है। हम लोग वहां पर नए पौधे लगा रहे थे। लगता है कि रानी ने खौफ के मारे तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। अरे वो तो अपना शोक मना रही है कि तुमने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब तुम उसे दोबारा से नौकरी पर रखोगे और उससे अपने लहजे की माफ़ी मांगोगे। तुम हद से ज़्यादा बदतमीज़ और ज़िद्दी होते जा रहे हो। मैंने तुम्हारी तरबियत इस तरह से नहीं की थी। अरे मैं तो तुम्हें औरतों की इज्जत करना सिखाया था, लेकिन तुमने तो अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करके मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया। मुझे यूं महसूस होता है जैसे तुम्हारी तरबियत करके मैंने तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी हो। अरे दादी जान, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप जानती हैं कि मैं गुस्से का बहुत तेज़ हूँ और गुस्से में मुझे किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगती। मैं मुकम्मल तौर पर अपने होश व हवास खो बैठता हूँ। और जहाँ तक अपनी बीवी के साथ अच्छे सलूक का सवाल है, तो मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। आज ही बस थोड़ा सा दिमाग घूम गया था। ये कहकर उसने लाइबा के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने साथ लगाते हुए कहा। दूसरी तरफ लाइबा उसका ये रवैया और उसका अंदाज देखकर हैरान और परेशान रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी ये जल्लाद उससे नरम लहजे में बात कर सकता है। वो इस इंसान को जल्लाद ही कहकर पुकारती थी, क्योंकि जब भी वो इसके पास जाता था कोई ना कोई बुरी खबर सुनाता था या फिर कोई मुश्किल काम उसके हवाले कर देता था। मगर ये जानकर उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि वो अपनी दादी जान से डरता है। इसका मतलब ये था कि अब वो जो दिल में आए वो करने वाली थी। चलो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, उसने मुस्कुराते हुए अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कहा। लाइबा ने जल्दी से दादी अम्मा का हाथ पकड़ लिया। दूसरी तरफ रुकैया बेगम को भी पता चल गया था कि ये उसके साथ नहीं जाना चाहती, क्योंकि अपने पोते को तो वो अच्छे तरीके से पहचानती थी। वो इससे कोई ज़रूरी बात करने वाला नहीं था, बल्कि वो इससे इस रवैये का बदला लेने वाला था। उन्होंने साफ साफ कह दिया, ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, ये तुमसे नाराज़ है। अब ये 2 दिन तक मेरे पास रहेगी। तुम जाओ अपने कमरे में और अब इससे बात करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो लाइबा की तरफ मुतवज्जो हुई और उंगली उठाकर उसे धमकी देने वाले अंदाज में कहने लगी, अब अगर मैंने तुम्हें इसे बात करते देखा तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। लाइबा ने मासूमियत से ज़ोर शोर से हाँ में सर हिला दिया। उसे ये सब बहुत मज़ा दे रहा था।
जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा खुश कर रही थी वो जहांगीर का लटका हुआ मुंह था। आज इसे उसकी कमज़ोरी के बारे में भी पता चल गया था और अब वो फैसला कर चुकी थी कि जिस तरह से जहांगीर ने उसकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया है वो भी उसी तरह से ही उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगी। वो मासूमियत से कहने लगी, दादी जान, क्या मैं आपके कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ? सारा दिन झुकने की वजह से मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा है। रुकैया बेगम ने ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिला दिया और उसे कमरे में जाने के लिए कहा। इससे पहले कि वो किचन से बाहर कदम निकालती, उसके शौहर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहने लगा, अरे अरे, ऐसे कैसे तुम जा सकती हो? मैं अभी ऑफिस से वापस आया हूँ। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे हाथ का जूस पीता हूँ। पहले मेरे लिए अच्छा सा जूस बनाओ, उसके बाद जाना। इसने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहने लगी, दादी जान ने मुझे आपके काम करने से मना किया है। जब तक ये मुझे इजाज़त नहीं देंगी तब तक मैं आपके किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। और वैसे भी आप ही मुझे कहते थे ना कि आपको मुझसे शदीद चिढ़ है। ये कहकर उसने एक अदा से अपने बाल पीछे किए और तेज़ी से वहाँ से निकल गई। वो नहीं जानती थी कि अपने शौहर नामदार के साथ इस तरह का रवैया करके वो अपने साथ कितना बड़ा जुल्म करने जा रही है। वो नहीं जानती थी कि इस वक्त वो जिस शख्स को नखरे दिखा रही है, अगर वो शख्स अपनी करनी पर आ गया तो उसे किसी काबिल नहीं छोड़ेगा। आज से तकरीबन 3 साल पहले इन दोनों का सामना एक दूसरे के साथ एक शॉपिंग मॉल में हुआ था। वो अपने लिए जॉगर्स पसंद कर रही थी। उसे शुरू से ही मर्दाना जॉगर्स अच्छे लगते थे। वो अपने लिए और अपने भाई के लिए हमेशा एक ही तरह के जोड़े खरीदती थी। अभी उसके भाई की सालगिरह आ रही थी और वो इसी सिलसिले में ही शॉपिंग करने के लिए गई थी। अचानक ही उसने एक जॉगर्स पर हाथ रखा जो उसकी नज़र को भा गए थे। इससे पहले कि वो जूता उठाती, किसी और शख्स ने भी उस जूते पर हाथ रख लिया। दोनों की नज़रें बेसाख्ता मिली। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जहांगीर था। जहांगीर ने जूता खींचना चाहा तो दूसरी तरफ लाइबा ने भी उससे जूता छीन लिया और उसकी आंखों में देखकर गुस्से से कहने लगी, पहले इस पर मेरी नज़र पड़ी है और हाथ भी इस पर पहले मैंने रखा है तो ये मेरा हुआ, इसे मेरे हवाले कर दीजिए। दूसरी तरफ उसके तन बदन पर आग लग गई। किसी की भी इतनी मजाल नहीं थी कि वो उससे इस अंदाज में बात करता या कोई उससे कोई चीज़ खींचता, मगर ये वो वाहिद लड़की थी जिसने ये जुर्रत कर दी थी। शायद वो इस इंसान की हैसियत के बारे में जानती नहीं थी, इसी वजह से तड़ाख तड़ाख बोल रही थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम इस वक्त किससे बात कर रही हो? इसने ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा। लाइबा ने आज तक इस तरह का लहजा और रवैया बर्दाश्त नहीं किया था। वो अपने घर वालों की लाडली बेटी थी, अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और अपने बाप की शहजादी थी। ना तो कोई उसे डांटता था और ना ही कोई उसे ऊंची आवाज़ में बात करता था। अगर कोई ये जुर्रत कर लेता था तो उसके बाबा उस इंसान को सबक सिखाते थे। पहली बात तो ये है मिस्टर कि अपनी आवाज़ नीची कीजिए, और दूसरी बात यह है कि मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। अगर आप शहजादे भी हुए तो अपने घर के होंगे। यहाँ पर वही आता है जिसके पास पैसे होते हैं। मैं यहाँ पर विंडो शॉपिंग करने के लिए नहीं आई, बल्कि जूते खरीदने के लिए ही आई हूँ, और ये जूता मुझे पसंद आ गया है, अब मैं यहीं लूँगी। जहांगीर ने एक नज़र उस लड़की के छोटे छोटे कदमों पर डाली। वो जूता उसे 3 नंबर बड़ा था, मगर उसके बावजूद भी वो हाथ में पकड़े खड़ी थी। जहांगीर को यही लगा कि शायद अब वो जिद के मारे ये सब कुछ कर रही है। इसी वजह से उसे ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो उसे डांटते हुए बोला, कुछ तो खुदा का खौफ करो बीबी, अपने बोनों जैसे पैरों को देखो और फिर उस जूते को देखो, तुम्हारे दोनों पैर इसमें फिट हो जाएंगे। अपने खूबसूरत पैरों के लिए बोने का लफ्ज़ सुनकर इसके तन बदन में आग लग गई। वो भड़क उठी और गुस्से से कहने लगी, क्या मैंने आपको कहा है कि आपका कद खंबे जैसा है और आपकी नाक
याजूज माजूज जैसी है। नहीं ना, तो आपको भी कोई हक नहीं कि मेरा मजाक बनाएं और अभी और इसी वक्त मेरी नज़रों के सामने से हटें। मुझे आपकी अजीबोगरीब शक्ल देखने का कोई शौक नहीं। ये कहकर वो करीब से निकलने ही लगी थी कि बेसाख्ता जहांगीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और यहीं पर उस लड़की का हाथ उठा और इस शहजादे के चेहरे पर निशान छोड़कर चला गया। ये मंजर वहां पर मौजूद सब लोगों ने देखा था। सेल्समैन के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि वो लड़की जिस शख्स पर हाथ उठा चुकी थी वो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था और सबसे मशहूर आदमी था। किसी में भी इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि वो इससे आंख उठाकर बात कर सके, मगर इस लड़की ने ना सिर्फ जुर्रत की थी बल्कि उसके साथ बदतमीजी करके वहां से निकलकर जा चुकी थी। उसने वो जूता भी इसके कदमों में फेंक दिया था, क्योंकि वो इस तरह से चीज़ें खरीदने की आदी नहीं थी। जब वो शॉपिंग मॉल से बाहर निकली तो उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। आज तक उसका इस तरह के हालात से सामना नहीं हुआ था। अपने बाजू पर उसे शदीद जलन का एहसास हो रहा था। एक गैर मर्द ने उसे हाथ लगाया था और ये बात उसके लिए बहुत तकलीफदेह थी। अपने घर जाने के बजाय वो अपनी सबसे पसंदीदा दोस्त के पास चली गई, जिसके सामने जाकर वो अक्सर ही अपने दिल का हाल अहवाल उसे सुनाती थी। आज वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। इसी वजह से वो चाहती थी कि उसकी दोस्त उसे तसल्लियाँ दे। तकरीबन 3 घंटों तक वो उसके पास बैठी रही। सना को जब पता चला कि उसने जहांगीर पर हाथ उठाया है, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो भी डर गई। कम से कम तुम्हें इतना बुरा रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, सना फिक्रमंदी से कहने लगी, जिस पर लाइबा तप गई और गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आई कि तुम मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाओ, बल्कि मैं इसलिए आई हूं ताकि तुम मुझे हौसला दो और तसल्ली दो कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं है। आखिर तुम किस तरह की दोस्त हो जो बार बार मुझे यही बताए जा रही हो कि मैं एक बहुत बड़ी गलती करके आ चुकी हूं और उसका अंजाम भी मुझे भुगतना पड़ेगा। ये कहकर वो रोने लगी। उसे इस तरह से रोता देखकर उसकी दोस्त परेशान हो गई और उसका हाथ थामते हुए बोली, अरे अरे, मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना बिल्कुल नहीं था। तुमने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। बस अब इस बात को अपने दिल से निकाल दो और अपने रब से दुआ मांगो कि वो तुम्हारी मदद करे और ये वाकया भूलने में भी तुम्हारा साथ दे। 3 घंटे गुजारने के बाद जब वो अपने घर के दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हुई तो वो हैरान रह गई, क्योंकि पूरा घर उस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़का। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। या तो उसके घर वाले घर पर मौजूद ही नहीं थे, या फिर वो लाइट्स बंद करके बैठे हुए थे। ये भी तो हो सकता था कि उनके घर का ट्रांसफार्मर खराब हो गया हो। उसके जहन में इस वक्त हजारों तरह के ख्याल आ रहे थे, मगर वो नहीं जानती थी कि इनमें से कौन सा ख्याल सच्चा है। डरते डरते उसने घर के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उसकी नज़र सामने कुर्सी पर बैठे शख्स पर पड़ी, एक ज़ोरदार चीख उसके मुंह से निकली। वो तेज़ी से भागती हुई उसके पास गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका बाप था, जिसे रस्सियों से बांधा गया था। वो इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अभी उसने अपने बाप की रस्सी को खोलना शुरू ही किया था कि किसी ने उसे बाजू से पकड़ा और पीछे की तरफ धक्का दिया। इसने जब खौफ से गर्दन उठाकर देखी तो सामने वही शख्स खड़ा था जिस पर वो हाथ उठाकर आई थी। वो अपने आप को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल चुकी थी, जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इस शख्स को देखकर उसने खौफ से अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और उसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, देखो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया है मैं उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे पाँव भी पड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरे घर वालों को कुछ ना कहो। सबसे ज़्यादा सज़ा ही तुम्हारे घर वालों को देनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने तुम्हारी अच्छी तरबियत की होती तो कभी भी तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक ना करती। तुम्हें अंदाज़ा भी है
کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھاکر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو اشارہ کیا جو اس کے بھائی کو کھینچتے ہوئے باہر لے آئے۔ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس وقت بہت بری طرح سے زخمی تھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی حالت بہت بری تھی۔ اسے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس جانے ہی لگی تھی کہ جہانگیر نے اس کی بازو پکڑ لی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہ میری باربی ڈال، نہیں، ابھی نہیں۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، ابھی دیکھو کہ تمہاری چھوٹی بہن کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ نہ صرف تمہاری روح کانپ اٹھے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والوں کے لیے بھی عبرت کا نشان ہوگا۔ اب کی بار وہ واقعی میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور زور زور سے روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، خدا کے لیے میری معصوم بہن کے ساتھ ایسا کچھ نہ کرنا، اس کی کوئی غلطی نہیں۔ تم جو بھی کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے تم مجھ سے لے لو، میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گی۔ اب کی بار وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا، تم مجھے پیسے دو گی؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہنسا تھا۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز ہر طرح کے جذبات سے آ رہی تھی۔ مجھے تمہارے پیسوں کی نہیں بلکہ تمہارے حسن کی ضرورت ہے۔ تم میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت میری حویلی چل رہی ہو، اور پھر وہاں جا کر میں تمہیں باقی باتوں کے متعلق بتاؤں گا۔ ویسے تو تمہیں ابھی سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تمہیں حویلی لے جانے کا کیا مقصد ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لائبہ کو آنکھ ماری۔ دوسری طرف اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر جا کر چھپ جائے جہاں پر کوئی بھی اسے نہ ڈھونڈ سکے۔ اگر اسے اپنے گھر والوں کی فکر نہ ہوتی تو شاید ابھی بھی وہ اس شخص کے چہرے پر ایک اور زوردار تھپڑ مارتی، مگر وہ دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ چند لمحوں تک بیٹھی وہ سوچتی رہی اور پھر سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں بھی میری ایک بات ماننی ہوگی۔ میں صرف اسی صورت میں تمہارے ساتھ حویلی جاؤں گی۔ جہانگیر یہ بات جانتا تھا کہ یہ لڑکی ٹیڑھی ہے اور کسی بھی طرح سے آسانی سے قابو میں نہیں آئے گی، ضرور کوئی نہ کوئی شرط رکھے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں۔ لائبہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، سوچ لو، بعد میں ایسا نہ ہو کہ مکر جاؤ۔ میں کبھی بھی اپنی کہی ہوئی بات سے نہیں مکرتا، تم جو بھی کہو گی مجھے منظور ہوگا۔ یکدم ہی وہ جذباتی ہو گیا تھا اور جذبات میں آ کر اس نے وہ الفاظ بول دیے جس پر وہ بعد میں پچھتانے والا تھا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، صرف اسی صورت میں تمہارے ساتھ تمہاری حویلی جا سکتی ہوں، ورنہ پھر تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور میرے گھر والوں کو بھی چھوڑ دو گے۔ وہ کافی دیر تک اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتا رہا جس نے اتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کر دی تھی۔ وہ اسے اس کی زندگی میں ایک مقام مانگ رہی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت جلد تمہیں مسئلہ ہونے والا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ شرط رکھ کر تم نے اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت خرید لی ہے۔ مجھے کسی بھی مصیبت سے ڈر نہیں لگتا، نہ ہی مجھے کسی آزمائش کا خوف ہے۔ مجھے صرف اور صرف اپنی عزت کے چلے جانے کا خوف تھا، جو اس صورت میں محفوظ رہ جائے گی، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ایک پاک رشتہ بنانے جا رہی ہوں، گناہ نہیں کرنے جا رہی۔ اس کا باپ تیزی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو وہ اس جہنم میں جھونکنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، مگر اس نے اپنے باپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر مت کریں، آپ کی بیٹی بہت مضبوط ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں اپنا فیصلہ آپ کو بہترین ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ بس آپ صرف اور صرف میرے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے اور مجھے دعا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں مجھے کامیاب کرے۔ جب تک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تب تک میں کسی بھی چیز سے نہیں ڈروں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
जाने से पहले उसने अपने बाप को सारी कहानी सुना दी थी कि ये शख्स क्यों उसके पीछे आया है। उसके बाप ने इसके कंधे पर हाथ रखा और उसे थपकी देते हुए कहने लगा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुमने इस शख्स को इसकी औकात याद दिलाई थी। अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हवा में उड़ रहा है क्योंकि वो असर और रसूख का मालिक है। अगर अभी और इसी वक्त ये दौलत इससे छीन ली जाए तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय जिल्लत के। बाप की बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, आप फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द इससे इसके किए का बदला लूँगी और इसे एक ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये सारी उम्र पछताता रहेगा। अपने बाप से इस तरह के वादे करने के बाद वो वहाँ पर चली तो गई थी, लेकिन नहीं जानती थी कि वहाँ पर जाने के बाद उसे एक और बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। वो इसके साथ किसी भी किस्म का अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करने के लिए उसे अपने साथ नहीं लाया था, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इससे बदला लेना चाहता था और एक ऐसा सबक सिखाना चाहता था जिससे उसकी अना को तस्कीन पहुंच सके। वहाँ पर जाने के बाद उसने लाइबा को साफ अल्फाज में बता दिया था कि उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा की नहीं और वो सारी ज़िंदगी उसी हैसियत के साथ गुजारेगी। उसने अपनी दादी जान को फ़िलहाल इस शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो जानता था कि अगर उन्हें पता चल गया तो वो इस औरत के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पहुँच जाएंगी। मगर काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी ये खबर उसकी दादी जान तक पहुँच गई और रुकैया बेगम एक ही हफ्ते के बाद वहाँ पर आ गई ताकि अपने पोते की खबर ले सकें। वो इसे पिछले 3 सालों से मुसलसल शादी के लिए कह रही थी, लेकिन वो टाले जा रहा था और अभी उसने एकदम ही शादी कर ली थी, वो भी छुपकर। किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो जब पहली बार यहाँ आई थी तब सिर्फ 3 दिनों के लिए यहाँ पर रह सकी थी, चूँकि उन्होंने उम्रे के लिए जाना था। इसी वजह से ही उन्होंने फ़ैसला किया था कि वो उम्रा मुकम्मल करने के बाद दोबारा से यहाँ आकर रहेंगी। लेकिन फिर सऊदीया से वो लंदन चली गई क्योंकि उनका एक और बेटा उन्हें याद कर रहा था। यूं उनका चक्कर भी लेट हो गया। पीछे जहांगीर लाइबा को तकलीफ़ पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा था। उसकी सुहाग रात थी, वो अपने बेड पर लेटी आराम कर रही थी। एक बात से तो वो पुरसकून थी कि ये शख्स उससे हक नहीं मांगेगा और ना ही उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा। वो मुकम्मल तौर पर महफूज थी, मगर वो नहीं जानती थी कि ये उसकी जान लेने वाला है। आखिर तुम किस तरह की औरत हो? पूरा कमरा गंदा है और तुम आराम से यहाँ बैठी हुई हो। चलो जल्दी से पहले कमरा साफ करो, उसके बाद लेटना, आराम करना। जहांगीर जब उसे लेकर यहाँ पर पहुँचा था तब शाम के 4 बज रहे थे। वो उस वक्त सो गया था और अभी रात के 12 बजे जाकर उठा था। इस वक्त लाइबा को शदीद नींद आ रही थी और वो सोने की ही तैयारियों में थी कि उसका शौहर नामदार उसके सर पर आकर खड़ा हो गया और उसे एक नया हुक्म सुना दिया। इस एक बात का तो अंदाज़ा था कि ये मौसूफ अपनी नींद पूरी कर चुके हैं और अब यकीनन वो इसे तंग करने का इरादा रखते हैं। अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, सुबह सफाई कर दूंगी। उसने ये बात पूरी की ही थी कि वो उसके सर पर जाकर खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें हक नहीं दिया कि तुम आगे से मेरे सामने ज़बान चलाओ। मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वो खामोशी से मानो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुम्हारे घर का रास्ता बहुत अच्छे तरीके से याद है। मेरे एक इशारे पर ही मेरे लोग तुम्हारे भाई को उठा लेंगे। पहले ही वो उसे ज़ख्मी कर चुके हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो उसे इस दुनिया से भी गायब कर देंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम तो अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करती हो और उन्हीं को बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी कुर्बानी का कोई भी फ़ायदा ना हो और सब कुछ रायगां चला जाए? वो बड़ी खूबसूरती के साथ उसके दिमाग के साथ खेल रहा था और उसकी जहनी हालत को तबाह बर्बाद कर रहा था। उसकी बातें सुनकर वो तड़प उठी और कहने लगी, नहीं नहीं,
तुम मेरे घर वालों को कुछ ना कहना, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। तकरीबन 5 घंटे तक वो सफाई करती रही। सुबह 6 बजे दोबारा से उसे जगाया गया और उसे नया हुक्म सुना दिया कि मेरे लिए नाश्ता बनाओ। अभी वो उसके लिए आलू के पराठे बनाकर फारिग हुई थी कि एक नया हुक्म आ गया, मुझे आलू के पराठे नहीं खाने, मुझे ऑमलेट और एक सादा पराठा खाना है। जब वो बनाकर फारिग हुई तो वो जूस की फरमाइश करने लगा। उसने इनमें से कुछ भी नहीं खाया था, बल्कि उसके मुंह पर साफ कह दिया था कि इनमें से कोई भी चीज़ खाने के लायक नहीं। वो सारी चीज़ें उसने मुलाजमों में बांट दी थी। इसे ये सब कुछ देखकर बहुत अफसोस हुआ था और इसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन आगे परवाह किसे थी? वो शख्स तो लाया ही इसे इसी वजह से था ताकि उसे तकलीफ़ें पहुंचा सके। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो इसे पूरी हवेली की सफाई करवाता था और उसके साथ साथ उसे घर से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं देता था। वो अपने घर वालों से मिलने के लिए तरसती थी, तड़पती थी, मगर इस जालिम इंसान को कोई परवाह नहीं होती थी। उसका काम सिर्फ और सिर्फ अपनी खिदमत करवाना था। शाम के वक्त वो ऑफिस से वापस आता तो उसके हुक्म शुरू हो जाते, जिसे वो बहुत ही खूबसूरती के साथ पाया तकमील तक पहुंचाती थी। अब उसे इस औरत की मुकम्मल तौर पर आदत हो गई थी, क्योंकि ये उसके छोटे से छोटे काम करती थी और इसके अलावा उसका ख्याल भी रखती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि लाइबा उसके लिए इस कदर परेशान हो जाएगी। पूरी रात वो उसके सरहाने बैठी रही और ठंडे पानी की पट्टियाँ उसके माथे पर रखती रही। वो पूरी रात उसकी मौजूदगी को महसूस करता रहा था। उसे काफ़ी सुकून भी मिल रहा था। सुबह जब वो उठा तो इसकी हालत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी, लेकिन उसने लाइबा का शुक्रिया अदा नहीं किया था, बल्कि हमेशा की तरह उसने अपने अल्फाज से इस मासूम सी लड़की को छलनी कर दिया था। अब वो अपनी इस आदत का कुछ नहीं कर सकता था। माफ़ी मांगना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था और ना ही उसे कभी किसी से नरमी करने का तजर्बा था। वो एक सख्त दिल का मालिक इंसान था जो हमेशा ही दूसरों पर जुल्म करता और अपनी बातों को मनवाता था। वो थप्पड़ आज तक नहीं भूला था। कभी कभार जब इसे इस औरत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तो वो उसे मार भी जाता था और उसे गालियाँ भी देता था, लेकिन लाइबा खामोशी से वो सब कुछ सह जाती। एक दिन तो हद हो गई थी। उसका एक दोस्त उससे मिलने के लिए आया था, मगर वो अपने कमरे में लेटा आराम कर रहा था। लाइबा ने उसे बैठक में बिठाया और उसके साथ खड़ी होकर बातें करने लगी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि वो इसके सर पर पहुंच गया। अपने दोस्त के सामने ही उसने अपनी बीवी के चेहरे पर हाथ उठाया और उसके किरदार पर शक करते हुए उस पर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। सिकंदर ने जब ये कुछ देखा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो जहांगीर का गिरेबान पकड़कर खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक कैसे हो सकते हो? मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि तुम्हारी जहनियत इस कदर छोटी है। अरे मैं इसे अपनी बहन कहकर इससे बात कर रहा था। मैं इसे अपनी बहन मानता भी हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये तुम्हारी बीवी है, ये मेरी भाभी है। मैं कैसे इसके साथ कुछ गलत कर सकता हूँ, या कैसे अपने जहन में कोई गलत ख्याल ला सकता हूँ? तुम्हारी इस हरकत ने हमारी बरसों की दोस्ती को तोड़ दिया। ये कहकर वो खामोशी से घर से बाहर निकल गया। लाइबा भी बहुत दिल बर्दाश्ता हो गई थी। उसके बाद उसने कभी भी जहांगीर को मुखातिब नहीं किया था। वो बस खामोशी से उसके काम कर देती थी। अगर वो कोई बात कह देता था तो हूँ हाँ में जवाब दे देती थी। अभी तक इन दोनों की इसी बात पर नाराज़गी चल रही थी। चाहकर भी वो उस इल्ज़ाम को नहीं भूल पा रही थी कि फिर उसकी दादी उनकी ज़िंदगी में चली आई, जिससे काफ़ी हद तक माहौल खुशगवार हो गया। दिन के वक्त वो उनकी इजाज़त से ही अपने घर वालों से मिलने के लिए गई थी। वो कैफ़े में अपने कज़न के साथ नहीं, बल्कि अपने भाई के साथ बैठी थी कि जहांगीर ने उसे देख लिया था। वो भी उसे पहचान गई थी।
اسی لیے جلدی سے وہاں سے بھاگی گھر آئی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کی دادی نے اس کی جان بچا لی اور ابھی اسے اپنے کمرے میں ہی ٹھہرایا ہوا تھا۔ جہانگیر مسلسل 3 گھنٹوں سے بستر پر کروٹیں لے رہا تھا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ اسٹور روم میں رہتی تھی، لیکن جب سے جہانگیر بیمار ہوا تھا تب سے وہ اس کے کمرے میں ہی شفٹ ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق تو نہیں تھا، لیکن وہ ایک ہی بستر پر سوتے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے دائیں جانب ڈالی، وہ جگہ خالی تھی۔ اسے شدید بے چینی کا احساس ہونے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اپنی دادی کے کمرے میں گیا۔ دروازے پر دستک دی، دروازہ کھل گیا۔ اس کی دادی سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پا رہی تھی۔ دراصل میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، سر میں شدید درد ہے، مجھے گولیاں نہیں مل رہی، ذرا اپنی بہو کو کہیے کہ وہ آ کر مجھے گولیاں ڈھونڈ کر دے دے۔ لائبہ بیڈ پر لیٹی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دادی نے اسے مخاطب کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رقیہ بیگم اپنے پوتے کو کہنے لگی کہ وہ اس وقت سو رہی ہے، میں اپنی بچی کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی، تم یاسر کو کہو وہ تمہیں گولیاں نکال کر دے دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ صرف یہی نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد بھی وہ لائبہ کو اس کا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ انہوں نے اب لائبہ کو مکمل طور پر اپنے پوتے سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس صورتحال میں ان کا یہ پوتا کیا کرتا ہے۔ اگر اسے واقعی اس لڑکی سے محبت تھی تو اس نے ہر حال میں اس کے پاس ہی آنا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ سوئمنگ پول کے قریب جا کر کھڑی تھی جب اچانک ہی پڑوسیوں کا کتا ان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بھونکنے کی آواز سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے بھاگنے کا سوچا ہی تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پانی میں جا کر گری۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ قریب ہی یاسر کھڑا تھا جو کہ کک بھی تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا وہاں پر گیا اور اسے جلدی سے پانی سے باہر نکال دیا۔ جہانگیر جو کہ ابھی ابھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ بلا شبہ اس نے ابھی تک اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا تھا اور اس کی حیثیت نوکروں جیسی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کے نکاح میں تھی اور وہ کسی بھی غیر مرد کو یہ اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اس کی بیوی کو ہاتھ لگائے۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر چلاتا، لائبہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہنے لگی، خدا کے لیے میرے کردار پر وار مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جہانگیر کو آج اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ اپنے دل کی بدلتی ہوئی کیفیت پر خود بہت زیادہ حیران تھا۔ پچھلا پورا ہفتہ اس نے بڑی ہی مشکل سے کاٹا تھا۔ ہر پل اور ہر قدم پر اسے اس عورت کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ یہ عورت اب اس کی ضرورت بن گئی تھی اور اب اس کے دل کے بہت قریب ہو چکی تھی۔ وہ مزید اسے دوری اختیار کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایک نظر اس نے اپنی معصوم سی بیوی پر ڈالی جس کا خوبصورت سراپا اس وقت کسی بھی قسم کی آرائش سے خالی تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس میں ایک کشش تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ماضی میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ لائبہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ منہ کھول کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ یوں اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے معافی نہیں مانگ رہا، بس تمہیں بتا رہا ہوں۔ اب کی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، یعنی اس کی دادی نے اسے جو طریقہ بتایا تھا وہ کارآمد ثابت ہوا تھا۔ اس کا شوہر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور اس کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی دوسری بات نہیں تھی۔ میں سب نوکروں کو یہ بات بتا دوں گا کہ اب تم اس گھر کی مالکن ہو
اور تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا ایک مالکن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ باقی اس گھر میں جتنے بھی میل نوکر ہیں میں انہیں نکلوا دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مرد اس گھر میں کام کرے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لائبہ نے بھی اس قصے کو نہیں چھیڑا اور زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ پھر اس نے معصومیت سے پوچھا، کیا ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ کیا اب ہم شوہر اور بیوی کی طرح رہیں گے؟ جہانگیر کے چہرے پر ایک محظوظ سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اس سے کہنے لگا، میں تو پہلے ہی یہ رشتہ قائم کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر تم ہی مجھے نخرے دکھا رہی تھی۔ لیکن اب تم مجھے لاکھ نخرے بھی کیوں نہ دکھاؤ، میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوگا۔ پہلے بھی میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر ضبط کیا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ شرما گئی، جبکہ کھڑکی سے باہر آسمان پر چمکتا ہوا چاند آسودگی سے مسکرا دیا، اور ان کے اس ملن پر اس کی چمک میں اور اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔